In this video, we will discuss deductive and inductive methods to construct economic theories. This is part 5 of the 5 videos on methodology of economics as a social science. Part 1 is related with economics as a social science. Hypothesis, theory, and law are explained in part 2. Part 3 explains assumptions. In part 4, you will find positive and normative economics. And in this part 5, we will discuss deductive and inductive methods. Now, we will again make two videos, one on deductive and other on inductive. इसको हम नाम रख लेते हैं 5A, इसको हम नाम रख लेते हैं 5B. तो दो वीडियोस बनाएंगे इस हेडिंग की, डिडक्टिव के लिए अलग से एंड इंडक्टिव के लिए अलग से. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिडक्टिव मेथड 5A. According to Peterson, Gerald Peterson was a professor of mathematical sciences at University of Missouri, St. Louis, USA. According to Peterson, the term method refers to the techniques employed by economists in both the construction and verification of economic principles. पीटरसन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए और उसको वेरीफाई करने के लिए इकोनॉमिस्ट द्वारा जो भी टेक्निक यूज़ की जाती है, एम्प्लाई की जाती है, दैट इज़ नोन एज द मेथड. And there are two methods to construct economic theories: deductive method and inductive method. In deductive method we are discussing here, this is the number of the video 5A. Inductive method we will discuss in next video, that is 5B. So first is the deductive method. This method has been employed by classical economists Adam Smith, David Ricardo, etc., neoclassical economists Walras, Menger, etc., and modern economists Robbins, Friedman, etc. Adam Smith was a British economist, philosopher, and author, moral philosopher, pioneer of political economy, also known as the father of economics or the father of capitalism. Smith wrote two classic works, The Theory of Moral Sentiments in 1759 and An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, also known as Wealth of Nations in short, in 1776. The Wealth of Nations is considered as the first modern work of economics. David Ricardo was a British political economist. His most famous book is Principles of Political Economy and Taxation, appeared in 1817. Leon Walras was a French mathematical economist and Georgist, developed from the writings of American economist and social reformer Henry George. The Georgist paradigm, a typical example or pattern of something, seeks solutions to social and ecological problems based on principles of land rights and public finance, which attempt to integrate economic efficiency with social justice. Walras formulated the marginal theory of value and pioneered the development of general equilibrium theory. Karl Menger was an Austrian economist and the founder of the Austrian School of Economics. In 1871, he published a book entitled Principles of Economics, in which he challenged classical cost based theories of value with his theory of marginality, that price is determined at the margin. Lord Robbins was a British economist
and prominent member of the economics department at the London School of Economics. In his book Essays on the Nature and Significance of Economic Science in 1932, he redefined the scope of economics to be the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Milton Friedman was an American economist who received the 1976 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences for his research on consumption analysis, monetary theory, history and theory, and the complexity of stabilization policy. Friedman's challenges to what he later called naive Keynesian theory began with his 1950s reinterpretation of the consumption function. तो ये कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने डिडक्टिव मेथड को यूज़ किया है अपनी थ्योरीज बनाने के लिए. This method is also known as hypothetical method because it is based on hypothesis. Hypothesis क्या है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है. इसी सीरीज में वीडियो पार्ट नंबर 2 में है hypothesis. Abstract method because in this method conclusions regarding a problem are drawn on the basis of important facts alone. Priori method because to formulate laws by this method no empirical data is called for. And method of intellectual experiment, it is called by Professor Boulding. Kenneth Boulding was an English-born American economist, educator, peace activist, and interdisciplinary philosopher. He published over 36 books and over 112 articles. तो इस मेथड को इन नामों से भी जाना जाता है: हाइपोथेटिकल मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, प्रायरी मेथड और मेथड ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट. What is the definition of this method? According to Wilson G. Wilson G. was a professor of rural economics and rural sociology at the University of Virginia, USA. According to G, by deductive method is meant reasoning from general to particular or from universal to individual. जी के अकॉर्डिंग जब हम जनरल स्टेटमेंट से कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट बनाएं या यूनिवर्सल किसी चीज़ से इंडिविजुअल लेवल का डिसीजन लें, दैट इज़ नोन एज द डिडक्टिव मेथड. तभी हम कहते हैं कुछ डिड्यूस करना, तो उससे ही बना है ये डिडक्टिव मेथड. ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है. मैन इज़ अ मॉर्टल. कोई भी जो मैन है वो मॉर्टल है. मॉर्टल मीन्स मरणशील है, उसने मरना ही है एक दिन. मार्शल इज़ अ मैन, देयरफॉर मार्शल इज़ मॉर्टल. तो हमने क्या किया, एक जनरल स्टेटमेंट से, यूनिवर्सल ट्रुथ से एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बनाया, इंडिविजुअल ट्रुथ बनाया. जनरल से हम पर्टिकुलर पे आ गए, बड़े से छोटे पे आ गए. मतलब यूनिवर्सल जो होता है उससे हमने एक पर्टिकुलर कंक्लूजन निकाला, डिड्यूस किया, तभी इसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड. दीज आर द स्टेप्स ऑफ द डिडक्टिव मेथड. इसको स्टडी करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट, जनरल प्रोपोजिशन और हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस इज एन इफ देन प्रोपोजिशन. ये हमने पहले सेकंड पार्ट में भी डिस्कस किया है. हाइपोथेसिस होता है इफ देन स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन यूजुअली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए कॉजल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रियल वर्ल्ड इवेंट. तो रियल वर्ल्ड में जो भी इवेंट हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, उसके बेस पर हम एक कॉजल का मतलब है कॉज एंड अफेक्ट शो करने वाला, जिससे पता चले कि कौन सा कारण है, कौन सा अफेक्ट है. इफ़ अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा. विच रिप्रेजेंट्स अ टेंटेटिव एंड येट अनटेस्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द इवेंट. मतलब कोई रियल वर्ल्ड में कोई इवेंट हो रहा है,
उस इवेंट के बेस पर हम कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बना रहे हैं, बट अभी उसको हमने टेस्ट नहीं किया, इवेंट को येट अनटेस्टेड, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ जनरल प्रोपोजिशन दैट द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय इट्स डिमांड एंड सप्लाई। अब अभी तक अगर इसको टेस्ट ना किया हो सपोज, तो हम प्रोपोजिशन बनाई पहले मार्केट बिहेवियर देख के लोगों का, कि किसी भी चीज़ की जो प्राइस है वो उसकी डिमांड एंड उसकी सप्लाई के साथ डिटरमिन होती है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। अगर हमने इसको टेस्ट नहीं किया तब तक ये हाइपोथेसिस है। सो फर्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस बनाना। अब डिडक्टिव मेथड में जो हाइपोथेसिस बनाया जाता है, ये हाइपोथेसिस बनाया जाता है मार्केट में रियल इवेंट जो हो रहा है, मार्केट में जो भी हैपन हो रहा है उसकी जजमेंट से। तभी इस मेथड को हाइपोथेसिस मेथड कहा जाता है, हाइपोथेटिकल मेथड, क्योंकि ये हाइपोथेसिस पर बेस्ड है। तभी इस मेथड को बनाने के लिए प्रायरी मेथड भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें नो एम्पिरिकल डाटा इज़ कॉल्ड फॉर। अभी हमने कोई एम्पिरिकल डाटा यूज़ नहीं किया, मार्केट में अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया अभी, इसलिए इसको ये भी कहते हैं प्रायरी मेथड। तभी इसको बोल्डिंग ने कहा है मेथड ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट। मतलब जो इंटेलेक्ट्स हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्टडी कर रहे हैं किसी इवेंट को, वो रियल वर्ल्ड में जो इवेंट हो रहा है उसको देख के ही पहले ही हाइपोथेटिकली हाइपोथेसिस ड्रॉ कर लेते हैं। तभी इसको इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट कहा है। उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे। तो जो हाइपोथेसिस बनाया वो विदाउट डेटा बनाया। सेकंड स्टेप है assumptions. Every theory is based upon a set of assumptions. assumptions के ऊपर भी अलग से पार्ट बनाया हुआ है वीडियो का। पार्ट नंबर 3 is related with assumptions. It is worth mentioning that some assumptions are taken merely to simplify the analysis. तो assumptions हम क्यों लेते हैं, दो कारण हैं इसके। एक तो हम उस एनालिसिस को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, दूसरा हम एनालिसिस करने के टाइम जिस पॉइंट का इफेक्ट देखना हो, जिस वेरिएबल का इफेक्ट देखना हो, उसी को हम चेंज करते हैं, बाकियों को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो एनालिसिस को सिंपल करने के लिए मेनली अजम्पशंस को लिया जाता है। दो दे मे नॉट बी इंटायरली रियलिस्टिक। ज़रूरी नहीं अजम्पशंस रियल वर्ल्ड में ओके हों। जैसे हम मान लेते हैं कि सपोज इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेंस कांस्टेंट, हमने ये मान लो अज्यूम कर लिया। तो रियल वर्ल्ड में ज़रूरी नहीं कि इनकम कांस्टेंट ही रहे, बट हम अपने एनालिसिस को स्टडी करने के लिए, सिंपल करने के लिए हमने क्या किया, हमने अज्यूम कर लिया कि मान लो इनकम का कोई इफेक्ट नहीं है, तभी हमने अज्यूम कर लिया सपोज इनकम रिमेंस कांस्टेंट। तो ऐसे हम कोई भी हाइपोथेसिस को स्टडी करने के लिए कुछ असम्पशंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉलोइंग असम्पशंस कैन बी मेड इन रिस्पेक्ट टू द अबव हाइपोथेसिस। हमारा जो हाइपोथेसिस है कि किसी भी चीज़ की प्राइस उसकी डिमांड सप्लाई के साथ डिटरमिन की जाती है, उसको स्टडी करने के लिए हम कुछ असम्पशन ले सकते हैं। जैसे सपोज देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, इट मीन्स कंपटीशन है। इन्वर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, डिमांड एंड प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, मीन्स प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। एंड सपोज देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस, मीन्स प्राइस एंड सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी, दैट इज़ द लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये हमने अज्यूम कर लिया, मान लो ऐसे होता है। The third point is the logical conclusion.
On the basis of assumptions, conclusions are drawn with the help of logic. तो जब हम assumptions ले लेते हैं hypothesis की, तो फिर हम logic के साथ conclusion को draw करते हैं. For example, on the basis of the assumptions relating to the above hypothesis, जो भी हमारी जो assumptions हैं, it can be concluded by logical reasoning. तो logical reasoning के साथ हम conclusion draw कर सकते हैं क्या? That since supply of a commodity will be more, supply ज़्यादा होगी, then its demand at higher price. क्योंकि हायर प्राइस पर क्या होगा, हाई प्राइस पर डिमांड कम होगी, हाई प्राइस पर सप्लाई ज़्यादा होगी. तो इट मीन्स सप्लाई विल बी ग्रेटर देन डिमांड एट हाई प्राइस ड्यू टू कंपटीशन. देयर विल बी टेंडेंसी फॉर द प्राइस टू फॉल. क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी डिमांड से, सप्लाई ज़्यादा होने से प्राइस कम हो जाएगी. लॉजिकल कंक्लूजन देयरफॉर कैन बी दैट मार्केट प्राइस डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो क्या हुआ, जो मार्केट फोर्स थी डिमांड सप्लाई के साथ डिटरमिन हो गई. फोर्थ इज द प्रिडिक्शन. द लॉजिकल कंक्लूजन इज द बेस ऑफ प्रिडिक्शन. जो भी हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया उसके बेस पर फिर हम प्रिडिक्शन करते हैं. दीज प्रिडिक्शंस एस्टेब्लिश्ड कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप. तो यही हमारा कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप बनता है फिर of the economic phenomena. For example, if a supply of a commodity increases, its price falls. अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगी. तो ये सप्लाई एंड प्राइस में जैसे हमने यहाँ पे लिखा था पॉजिटिव रिलेशन, यहाँ पे हमने क्या दिखाया था, प्राइस का सप्लाई पे इफेक्ट, ये पॉजिटिव है. यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, सप्लाई का प्राइस पे इफेक्ट, ये नेगेटिव है. क्योंकि सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे देखा. देन वेरिफिकेशन ऑफ द प्रेडिक्शन. द प्रेडिक्शंस आर वेरीफाइड बाय द एम्पिरिकल स्टडीज़. तो ये बाद में आता है, तभी हम इसको प्रायरी मेथड कहते हैं. पहले नहीं आई एम्पिरिकल स्टडी, बाद में आई. हमारी प्रेडिक्शन हुई कि ऐसे होगा, फिर हम उसको जब रियलिटी में जाएंगे फिर चेक करेंगे कि वाकई ऐसे हुआ. इफ़ द प्रेडिक्शंस आर इन कन्फर्मिटी विद द एग्जिस्टिंग फैक्ट. जो हमने प्रेडिक्ट किया था अगर वैसा ही हुआ, द सेम आर एक्सेप्टेड, तो हम अपने हाइपोथेसिस को मान लेंगे, उसकी थ्योरी बना लेंगे. अदरवाइज रिवाइज्ड, नहीं फिर हम उसको रिवाइज करेंगे, चेंज करेंगे. दीज आर द सम ऑफ द स्टेप्स टू डिस्कस डिडक्टिव मेथड. नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस मेथड? First, it is a simple method. It is free from complex problems of collection, organization and analysis of data. तो इसमें प्रायरी मेथड है जी, इसमें डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं, एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं. तो ये मेथड सिंपल है. लेस एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज नो नीड टू कलेक्ट डाटा, नो नीड टू एनालाइज डाटा. तो इसलिए ये खर्चीला भी ज़्यादा नहीं है. इम्प्रैक्टिकल है, इम्पार्शियल, सॉरी, इट इज़ इम्पार्शियल बिकॉज ऑफ नो नीड टू कलेक्ट डाटा, द मेथड इज़ अनबाइस्ड. अब क्या है, जब अगर हम डाटा कलेक्ट करें तो डाटा की इन्फॉर्मेशन देने वाला हो सकता है हमें सही इन्फॉर्मेशन ना दे, और डाटा कलेक्ट करने वाला हो सकता है सही डाटा कलेक्ट ना करे. बट क्योंकि इसमें डाटा कलेक्ट करना ही नहीं, इसलिए इसमें ऐसी कोई पार्शलिटी नहीं होगी इस मेथड में. तो ये मेथड बाइस्ड नहीं होगा, ये मेथड अनबाइस्ड होगा, फेयर होगा. यूनिवर्सलिटी, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन जनरल नेचर ऑफ इंडिविजुअल्स. तो हमने जो भी हाइपोथेसिस बनाया था वो बनाया था रियल वर्ल्ड के इवेंट्स को देखकर. लाइक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जनरली सभी लोगों के साथ ऐसे होता है कि जैसे जैसे उनके पास कोई चीज़ बढ़ती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है. दैट इज़ नोन एज द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. देयरफॉर दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स एट ऑल टाइम्स एंड एट ऑल प्लेसेस. तो क्योंकि हमने जनरल रियल वर्ल्ड में जो इवेंट हो रहे हैं उन्हीं इवेंट्स को देखकर इस मेथड को बनाया है, इसलिए ये मेथड यूनिवर्सल है, सारे लोगों के लिए अप्लाई होता है, हर टाइम पर अप्लाई होता है और हर जगह पर अप्लाई होता है.
more suitability because to test the economic experiments no need of the laboratories. अब क्योंकि इसमें लेबॉर्ट्री की ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी ही हमारी लेबॉर्ट्री है, इसलिए हम पहले टेस्टिंग के साथ नहीं कोई स्टेटमेंट बना सकते। तो इस मेथड के हिसाब से जो स्टेटमेंट बनती है वो बिना एक्सपेरिमेंट के बन जाती है, इसलिए ये ज़्यादा सूटेबल है। अकॉर्डिंग टू गिडे एंड रेस्ट, चार्ल्स गिडे was a French economist and historian of economic thought. Guede was a proponent of the French historical school of economics. Charles Rist was also a French economist. According to Guede and Rist, in a science like political economy, तो ऐसी जो साइंस होती हैं जिसको हम सोशल साइंस भी कहते हैं, वेयर एक्सपेरिमेंट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि इनकी कोई लेबॉर्ट्री तो नहीं होती जैसे फिज़िक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायो की है, तो इन सोशल साइंस की कोई ऐसी लेबॉर्ट्री नहीं होती। देयरफॉर डिडक्टिव मेथड इज़ द सूटेबल मेथड, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है। सर्टेनिटी एंड क्लैरिटी, conclusions drawn by this method are certain, clear, pure and reliable because this method implies logical reasoning. अब जैसे हमने ऊपर स्टेप्स में भी देखा, थर्ड स्टेप था कि हम लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं अपने हाइपोथेसिस से कुछ अजम्पशंस को लेके। इट मीन्स लॉजिकल कंक्लूजन बनाया जा रहा है, देयरफॉर जो भी कंक्लूजन बना वो सर्टन है, क्लियर है, प्योर है, रिलायबल है। Then forecast. Because of accurate results obtained by this method, it is possible to make more accurate future forecast about the economic variables. तो economic variables के बारे में forecast कर सकते हैं हम कि प्राइस कैसे डिटरमिन हुई। जैसे हमने ऊपर देखा तो हमने forecast किया कि किसी भी चीज़ की प्राइस जो है उसकी डिमांड एंड सप्लाई के साथ डिटरमिन होगी, तो उस कंक्लूजन के बेस पर हमने प्रेडिक्शन किया। तो फिर हमारा स्टेप क्या था कि हम फिर इस प्रेडिक्शन को वेरीफाई करेंगे। एंड लास्ट मेरिट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री टू इंडक्टिव मेथड, जो हमारा दूसरा मेथड है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनी हुई है 5B। अंडर इंडक्टिव मेथड लॉजिकल रीजनिंग इज़ अप्लाइड टू द कलेक्टेड डाटा। अब इंडक्टिव मेथड में जब हम डिस्कस करेंगे, इंडक्टिव मेथड में लॉजिकल रीजनिंग लगाई जाती है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो वही लॉजिकल रीजनिंग हमने यहाँ पे यूज़ की है। देयरफॉर इंडक्टिव मेथड इज़ बेस्ड ऑन द डिडक्टिव मेथड। So these are some merits of the deductive method. Now there are some demerits also. First is unrealistic assumptions. The assumptions made by the deductive method are not always true. तो ये जैसे हमने इसके सेकंड स्टेप में भी देखा था कि जो भी हम assumptions लेते हैं वो ज़रूरी नहीं कि रियल वर्ल्ड में ट्रू हो, रियल वर्ल्ड में वो असल में ऐसे होता हो। सेकंड demerit, difficulty in verification. Since this method is not based on data, क्योंकि ये डाटा के ऊपर बेस्ड नहीं है, thus it is not easy to verify the particular conclusions drawn by this method. तो हम conclusion को verify नहीं कर सकते। In the words of Nicholson, Joseph Shield Nicholson was professor of political economy at Edinburgh University, Scotland, UK. He won the Cambridge Cobden Club Prize for his essay, The Effects of Machinery on Wages. According to Nicholson, the great danger of the deductive method lies in the natural aversion. Aversion का मतलब है a strong dislike to the labor of verification. मतलब हम इसमें वेरीफाई नहीं कर सकते अपने लॉजिकल कंक्लूजन को, क्योंकि ये डेटाबेस नहीं है। दिस इज़ इंटेलेक्चुअल टॉय। जैसे कि हमने देखा कि बोल्डिंग ने इस मेथड को कहा मेथड ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट। सिंस दिस मेथड इज़ नॉट बेस्ड ऑन डाटा,
Thus, it is an abstract method or irrelevant method. Abstract का मीनिंग है existing in thought or as an idea but not having a physical or concrete existence. मतलब कि ये जो मेथड है ये सिर्फ एक आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, रियल डाटा के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल सही होता है नहीं होता ये पता नहीं, क्योंकि ये बाद में टेस्ट करते हैं, इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इररेलेवेंट मेथड है। अकॉर्डिंग टू लर्नर, Abba Lerner was a Russian-born British economist. Lerner never stayed at one institution long, serving on the faculties of nearly a dozen universities and accepting over 20 visiting appointments. According to Lerner, the deductive method is an armchair analysis. तो तभी इसको कहा है लर्नर ने कि ये एक आर्म चेयर एनालिसिस मीन्स ये ड्राइंग रूम में बैठ के इंटेलेक्चुअल्स द्वारा सोच के बनाया गया मेथड है, ना कि रियल वर्ल्ड के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बनाया गया मेथड है। फोर्थ डिमेरिट, नॉट यूजफुल टू स्टडी ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट यूजिंग डाटा, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स को हम डाटा के बिना स्टडी कर ही नहीं सकते। Neither universal nor practical. The theories formulated on the basis of this method do not offer any solution to the real life problems. अब क्योंकि हम इन प्रॉब्लम्स को स्टडी ही नहीं कर सकते, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी को, देयरफॉर ये मेथड यूनिवर्सल नहीं हुआ, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए अप्लाई नहीं होगा। एंड लास्ट डिमेरिट इज द स्टैटिक. This method is based on the assumption of ceteris paribus. Ceteris paribus means other things remaining same. Thus, it is a static approach. But our approach to study real economic life should be dynamic. तो ये मेथड डायनामिक नहीं है, क्योंकि इस मेथड में हम पहले ही अपना हाइपोथेसिस बना लेते हैं। तो अगर डाटा बेस्ड ये हाइपोथेसिस हो, कुछ चीज़ों को हमने कांस्टेंट ना लिया हो, तो जब वो चीज़ें चेंज होंगी तो हमारा लॉजिकल कंक्लूजन भी चेंज होगा। तो अगर हम उसको स्टडी करेंगे तो हमारी थ्योरी भी चेंज हो जाएगी। तो वो हमें करनी चाहिए, तभी वो डायनामिक बनेगा। पर ये मेथड में क्योंकि सेक्टर्स पेरियस अजम्पशन ले ली, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मान लिया, इसलिए ये मेथड एक स्टैटिक मेथड बन के रह गया, डायनामिक ये मेथड नहीं है। दिस वाज अबाउट द डिडक्टिव मेथड. Inductive method we will discuss in the next video, that is the 5B part of this series. So for complete explanation about methodology of economics as a social science, must watch all the 5 videos of this 5 parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.